Good day to all of you. Today's lecture is on Arden's theorem and the conversion of finite automata to regular expression. First, the Arden's theorem. Arden's theorem is generally used to convert finite automata to regular expression. So, what is the statement of Arden's theorem? What it says? The Arden theorem says that if we have two regular expressions P and Q, if P does not contain a null string, then R equal to Q plus RP has a unique solution, that is R equal to QP का star. What is the meaning of this? एक बार दोबारा स्टेटमेंट देखते हैं. Suppose we have two regular expressions P and Q, and P does not contain null string, that is the value of P is not null. Q may be null, but P is not null. Then if we have an expression of this type, that is R equal to Q plus RP, then we can reduce it into R equal to QP का star, because they both represent the same regular expressions. बिल्कुल क्लियर है. So in place of R equal to Q plus RP, we can use R equal to QP का star. This reduces our regular expressions. चल देखते हैं क्या बनेगा. First, the proof of Arden's theorem. We know R equal to Q plus RP. So substituting the value of R equal to Q plus RP, what it becomes? Q plus RP into P. So it becomes Q plus QP plus RP. When we put the value of R recursively again and again, suppose now again put the value of R here, then again put the value of R here, then again put the value of R here. So what it becomes? First time P is repeated 2 times. Second जब आप करोगे P is repeated 3 times. Next जब आप करोगे P is repeated 4 times. ये 4 times, ये 3 times, ये 2 times. Next जब आप करोगे तो P कितनी बार हो जाएगा? 5 times. और ऐसे ही अगर आप चलते चलोगे तो ये कहाँ तक चलेगा? P infinite times. Substituting R, value of R again and again and again and again. So क्या बनेगा? When we put the value of R recursively, we get the following equation. तो इक्वेशन हमारी कुछ कैसे है? R equal to Q plus this QP. नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो QP का स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट QP का क्यूब, देन QP की पावर 4, QP की पावर 5, QP की पावर 6, अप टू QP की पावर इनफिनिटी. सो अब क्या करें? अगर आप इसमें से Q कॉमन निकालें, Q क्या करें? कॉमन निकालें. सो R इक्वल टू Q. सो पहली बार आपने इसमें से निकाला तो नल आ गया. नेक्स्ट वन, एक बार P, नेक्स्ट P concatenated 2 times, next P concatenated 3 times, next P concatenated 4 times, next P concatenated 5 times, up to P concatenated infinite times, which becomes R equal to Q P का star, as P star represents epsilon P square P cube up to P की power infinity. Hence it is proved that R equal to Q plus RP has a unique solution, that is R equal to QP का
star. So this is how we can prove the Arden's theorem. So इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है और इसको 2-3 बार लिख के देख लेना है, ये पेपर में आपके आ सकती है। नेक्स्ट, what are the assumptions to apply Arden's theorem? What we have to assume before applying the Arden's theorem? First, the transition diagram must not have null transitions. जिस फाइनाइट ऑटोमेटा को आप इक्विवेलेंट रेगुलर जिस फाइनाइट ऑटोमेटा का आप इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो उसके अंदर कोई भी नल ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए, नल के साथ इंडिकेट करते हुए कोई एरो नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव ओनली वन इनिशियल स्टेट। द फाइनाइट ऑटोमेटा must have one initial state, not more than that. In some exceptional cases, there may be some finite automata that have more than one initial state. So for those finite automata, Arden's theorem cannot be applied. Next, what is the method to convert finite automata to regular expressions using Arden's theorem? So what we are seeing in this, the method, how to apply this Arden's theorem on a finite automata to convert it into an equivalent regular expression. So we have two steps. In the first step, we create equations as in the following form for all states of DFA. So we have to create equations equivalent to the number of states of DFA. If the DFA has 8 states, then we have to create 8 equations. If it has 4 states, we have to create 4 equations. If it has n states, we have to create n equations. Having n states with initial state q1. Create equations as the following form for all the states of DFA having n states with initial state as q1. So q1 is equal to q1 r11, q2 r21, qn n1 प्लस अपसाइलन। अब आप देखिए 1 इसमें कॉमन है, 1 कॉमन है, लास्ट वाला बाद वाला आर के, तो व्हाट इट मीन्स, ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिंबल ऑफ द एरो दैट हैव डायरेक्शन इनकमिंग टुवर्ड्स q1। उन सारे एरोज के ऊपर जो अल्फाबेट हैं वो इसके साथ लिखने हैं आपने, जो जिनकी डायरेक्शन इनकमिंग है। सिमिलरली q2, q1 r12 एक, अब जब इनिशियल स्टेट हो तो उसके साथ अपसाइलन आपने लगाना है, बाकी किसी के साथ नहीं लगाना। q2 r22 qn n2। सो जो r1 r के साथ जो सबस्क्रिप्ट है 1 2, पहला जो सिंबल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जो दूसरा सिंबल है वो सेम है, यानी कि इनकमिंग एरोज ऑन द स्टेट q2 के ऊपर जो अल्फाबेट हैं वो हर एक स्टेट के साथ आपने लगाने हैं। सिमिलरली फॉर qnth स्टेट, दैट इज q1 r1n, q2 r2n, qn rnn, where rij represents the set of labels of edges। यहाँ पे आप बात ध्यान से सुन लीजिए, rij क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ लेबल ऑफ एजेस, जो एजेस के ऊपर लेबल्स हैं, फ्रॉम qi टू qj, यानी कि ith स्टेट से jth स्टेट पे जो एजेस हैं ith से j की तरफ आ रहे हैं, उन एजेस के ऊपर जो लेबल्स हैं वो rij को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ नो सच एज एग्जिस्ट rij इक्वल टू 5। अगर ऐसा कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर आपकी 5 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर, सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द इक्वेशन फॉर द फाइनल स्टेट।
तो आपने इन इक्वेशंस को फिर सारियों को सॉल्व कर लेना है और फाइनल स्टेट के लिए एक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ आर आई जे की टर्म्स में हो वो इक्वेशन, यानी कि उसमें से ये स्टेट्स रिमूव हो जाएं, सिर्फ सिंबल सिंबल बच जाएं। फाइनल स्टेट के लिए एक आपने ऐसी इक्वेशन प्रिपेयर कर लेनी है, तो हमारा वो रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में क्या कहता है। ये हमारे सामने एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है। इसकी इनिशियल स्टेट आप ऐसे कह लीजिए कि 0 हो तो इसको आप Q0 मान लीजिए, 1 है तो आप इसको Q1 मान लीजिए, ये है तो आप इसको Q2 मान लीजिए। सो इसकी इनिशियल स्टेट Q0 है, फाइनल स्टेट भी Q0 है और टोटल स्टेट्स इसके अंदर 3 है। ठीक होगी जी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब आपने इस फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, सो वी हैव टू प्रिपेयर 3 इक्वेशंस, one for Q0, another one for Q1, next one for Q2. सो मैं एक बना के दिखाता हूँ। Q0 is equal to, अब एरो जो इनकमिंग आ रहे हैं वो जरा ध्यान देना आपने। Q1 से एक एरो Q0 पे आ रहा है, किसके साथ? B के साथ। सो क्या लिखना है आपने? Q1B प्लस Q2 से एक एरो आ रहा है A के साथ, Q2A प्लस अपसाइड। ठीक है जी, एक और बना लेता हूं। Q1 के साथ इज इक्वल टू, Q1 के लिए आपने बनाना है, Q0 से एक एरो आ रहा है A के साथ, सो इट इज Q0A प्लस Q2 से एक एरो आ रहा है B के साथ, Q2B। ठीक है जी, इसी तरीके से आपने Q2 की भी बना लेनी है। देखते हैं जरा क्या। सो द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर Q1B plus Q2A plus upside. So this is the first equation. Next one is Q1 के लिए बनानी है Q0A plus Q2B. Next Q2 के लिए Q0B plus Q0 से एक B आ रहा है, Q1 से एक A आ रहा है, Q1A. Now we have to solve for Q0 because Q0 is the final state. हमने Q0 के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। Q2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारी Q1 है वो Q0 और Q1 की टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है जी, Q1 किसकी टर्म में आएगी? Q0 और Q1 की टर्म। चलिए देखते हैं क्या बनेगी बात। सो ये हमारी स्टेटमेंट है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q2 इनटू इक्वेशन नंबर 2। Q2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, सो क्या बना हमारे पास, चेक कर लीजिए। Q1 इज इक्वल टू Q0A प्लस Q0B के साथ B प्लस Q1A के साथ B। ठीक होगी जी बात। तो आप ऐसे लिख लीजिए, आप इस पूरी के साथ लिख के बाहर भी लिख लीजिए, तो क्या बनेगी इक्वेशन में? Q1 इक्वल टू Q0A प्लस Q0B के साथ B प्लस Q1A के साथ B जोड़ के लिख। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब आगे देखते हैं क्या बनेगी हमारे पास बात। अब इसको Q0, क्योंकि ये मेरी Q0 है और ये मेरी Q0, हमने इसको आर्डन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की, हमने R इक्वल टू Q प्लस RP में के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ताकि हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकें? R इक्वल टू QP के स्टार में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए देखते हैं। सो हमने क्या किया, ये Q0 वाली टर्म हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि एक Q0 है, ये Q0B भी है, ये Q1A भी है। सो Q1A भी इधर निकाल लिया और Q0 को कॉमन लेके A प्लस B भी निकाल। अब ये हमारी इस R इक्वल टू Q प्लस आर बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो।
देखिए कैसे, Q1 को मैं R मान लूँ, ये R हो गया, तो ये Q1 भी मेरा R हो गया, ये A भी मेरा P हो गया, और ये पूरी की पूरी चीज हमारी क्या हो गई जी, Q हो गई। देख लीजिए हमारी ये लग गई ऑर्डर्स थ्योरम। सो R इक्वल टू Q प्लस आर पी प्लस क्यू या Q प्लस RP, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वन इज सेम थिंग। सो इसकी जगह पे इसका मतलब है मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू QP का स्टार, QP का स्टार, तो Q क्या बनेगा, Q0 A प्लस B फिर B इंटू ए बी का स्टार, P का स्टार, दैट इज A B और ये उसका स्टार। तो ऐसे बन जाएगी हमारी बात। चलिए देखते हैं क्या बना। ये देख लीजिए, वी हैव Q0 A प्लस बी बी ए बी का स्टार आफ्टर अप्लाइंग आर्डन्स थ्योरम। जैसे हमने आर्डन थ्योरम अप्लाई की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है हमने, क्योंकि हमने तो Q0 को सॉल्व करना है, अगर हम Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें और Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो सारी वैल्यू हमारी Q0 और Q1 की फॉर्म में आ जाएंगी और फिर ये इक्वेशन दोबारा लगने की चांसेस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या। So now putting the value of Q1 and Q2 into the equation number 1. So जैसे ही हमने वैल्यू को पुट किया, Q0 इक्वल टू Q0 A प्लस बी बी, ए बी का स्टार B, Q0 बी ए, Q0 A प्लस डबल बी, ए बी का स्टार डबल ए प्लस, अब साइड चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, ये Q1 की वैल्यू यहाँ पुट की तो क्या बनेगा, A प्लस बी, ए बी का स्टार B बन गई, ठीक होगी जी बात। Q2 की वैल्यू पुट की तो क्या बन गया, Q0B प्लस Q0BA, ऐसे कर लीजिए, या प्लस Q1AA प्लस अपसाइड, ठीक होगी जी बात। तो ये ऐसे बन गई। अब इसमें आपने क्या करना है, सारी टर्म्स अगर आप, अच्छा जी, अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब आप Q2 की वैल्यू पुट करोगे तो उसमें Q1 आ जाएगा, क्योंकि ये Q0 है, ये भी Q0 है, उस Q1 में फिर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक होगी जी बात, उसके अंदर फिर इस Q1 की वैल्यू पुट कर दो, तो सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में किसकी टर्म्स की बन जाएंगी, Q0 की बन जाएगी, किसकी बन जाएंगी जी, Q0 की बन जाएगी, Q0, ठीक होगी जी बात। चलिए अब इसको Q0 इसमें से कॉमन निकाल लो, Q0 कॉमन निकाल लिया, Q0 कॉमन निकाल लिया, और ये मेरा एक कॉमन एक्सप्रेशन बन गया और साथ में एक नल है। अगर अब आप देखें तो आर्डन थ्योरम दोबारा लग गई, ये R, ये R, ये सारा P और ये नल है, ये क्या है हमारा Q। सो QP का स्टार, QP का स्टार क्या बन गया, जब आपके पास ये पूरे का पूरे एक्सप्रेशन का स्टार और आगे नल, सो नल और ये मेरा P का स्टार, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन P का स्टार। सो व्हाट इट बिकम्स, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे का पूरा बन गया आफ्टर अप्लाइंग, जब आप इस पे आर्डन थ्योरम लगाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। सो the regular expression for the language accepted by automata is a plus double b into ab का star into b plus double a plus ba का star. This is how we can convert finite automata to regular expression. एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसका कॉरस्पॉन्डिंगली हमें रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना है। अब जरा ध्यान से देखें, Q1 हमारी इनिशियल स्टेट है, Q2 हमारी फाइनल स्टेट है, ठीक होगी जी बात। चल
So the initial state is Q1, फाइनल स्टेट इज Q2। इक्वेशन हमने तीन लिखनी है, एक Q1 के लिए, एक Q2 के लिए, एक Q3 के लिए। इनकमिंग एरोज का ऊपर ध्यान देना है। इनकमिंग एरोज Q1 के ऊपर जो इनकमिंग एरोज हैं वो किस अल्फ़ाबेट के साथ आ रहे हैं, Q2 के ऊपर किस अल्फ़ाबेट के साथ आ रहे हैं और किसके साथ, किस स्टेट से आ रहे हैं। सो पहला Q1 के ऊपर Q1 से ही एक ज़ीरो के साथ आ रहा है, Q और किसी से कुछ नहीं आ रहा, तो नल हमने लगाना ही था, वो नल और लगा। सो Q1 0 प्लस अपसाइलन। Q2 के लिए चेक कर लीजिए, Q1 से एक 1 और Q2 से एक 0। Q3 से अगर आप चेक करेंगे, Q2 से एक 1, Q3 से एक 0 और एक 1। सो Q3 से अगर Q2 से एक 1, Q3 से एक 0, Q3 से एक 1। तो ये हमारी इनिशियल इक्वेशंस बनी। अब सॉल्व किसके लिए करना है, हमने Q2 के लिए सॉल्व करना है, Q2 के लिए सॉल्व करना है, Q2 के अंदर। सो सबसे पहले सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, इसके ऊपर डायरेक्ट आर्डन्स मेथड अप्लाई हो रहा है। ये मेरी R है, ये मेरी R है, ये मेरी P है, ये मेरा Q है। तो इसके ऊपर आर्डन्स मेथड लग गया, Q P का स्टार तो 0 का स्टार बन गया, अपसाइलन 0 का स्टार। अगर आप इस पे आर्डन थ्योरम लगाते हो और अगर आप इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हो तो ये 0 का स्टार बनेगा, क्योंकि अपसाइलन R इज इक्वल टू R होता है। R के साथ अपसाइलन जोड़ो, अब अपसाइलन के साथ R जोड़ो, दोनों की वैल्यू R ही है। तो Q1 का 0 का स्टार आएगा। अब Q2 के अंदर अभी अगर हम करें तो Q1 की वैल्यू तो 0 का स्टार पुट कर देंगे, ठीक है जी, बड़ी सिंपल हो गई। तो 0 का स्टार मैं यहाँ पुट कर दूँ और Q2, ये Q1 खत्म हो गई, ये Q2 रह गई, ये Q2 रह गई। अगेन हमारी आर्डन थ्योरम लग जाएगी। देखते हैं जरा क्या, Q2 इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, 0 का स्टार 1 प्लस Q2 0। अगर अब आप दोबारा देखें तो इस पे आर्डन थ्योरम लग गई है, R R P और ये मेरा Q। तो अगर आप देखें तो क्या बन गया मेरे पास, 0 स्टार 1 0 का स्टार, 0 स्टार 1 0 का स्टार अगर आप बनाओगे तो ये बन जाएगा। सो Q2 इज इक्वल टू 0 का स्टार 1 0 का स्टार बाय आर्डन थ्योरम। ठीक होगी जी बात। एंड रेगुलर एक्सप्रेशन इज 0 का स्टार 1 0 का स्टार। इसमें Q3 हमारी कोई काम नहीं आई, ठीक है जी, और हमारा प्रॉब्लम Q1 से ही सॉल्व हो, इट इज पॉसिबल। ठीक होगी जी बात। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल, हाउ टू कन्वर्ट फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन। होमवर्क के लिए आप ये क्वेश्चंस नोट कर लें। ये 3 फाइनाइट ऑटोमेटा आपके सामने दिए हुए हैं, इनको आप इनकी स्नैपशॉट ले लें या इनको नोट डाउन कर लें। पहले के अंदर 3 स्टेट हैं, Q0 Q1 Q2। Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है, Q2 हमारी फाइनल स्टेट है। दूसरे के अंदर 2 स्टेट हैं, Q1 एंड Q2। Q1 इनिशियल स्टेट है, Q2 फाइनल स्टेट है। तीसरे के अंदर 4 स्टेट्स हैं, Q0 इनिशियल स्टेट है, Q3 फाइनल स्टेट है। तो इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंगली आपने रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।